Okay, so today we will study drug used in constipation. Okay, so the drugs which are used in constipation are combinedly known as purgatives. Okay, drugs which are used in constipation are also known as purgatives, and these purgatives include laxatives, and purgatives. And purgatives and laxative in combination is also termed as purgative only. Okay. So basically, these purgatives are used to overcome the constipation, to get relief from the constipation, and proper evacuation of bowel. Okay. To remove the bowel from the body, it is used. Proper removal or proper evacuation. So these drugs are effective in their own different ways. Okay, some drugs increase the intestinal motility, that is increase the peristalsis movement. Okay, and some work through increasing water and bulk content of the feces. Okay, so their mechanism of action is different. So first we will see bulk purges. First drug category used in constipation is bulk purges. BULK, bulk, PURGES, purges. These substances increase the content of the bowel and thus stimulate peristalsis. So what is the mechanism of these bulk purges? They basically increase the content of bowel. Okay. And how they increase? In these bulk purges, the composition is somewhat like which the substance cannot be absorbed or digested. So automatically, if a substance is not absorbed in our body and not digested, then what it will do? It will increase the volume, right? So these increases the content of the bowel, and along with increasing the content of the bowel, it also stimulates peristalsis movement, which helps in the evacuation of the bowel. Okay. Peristalsis movement is the movement which is seen in GI tract and which helps in the forward movement of the digestive substance or digestive content. Okay. So under bulk purges, the first type is dietary fiber or bran. Okay, under bulk purges, there comes the first subcategory, that is dietary fibers or bran. So what these dietary fiber or brans do, these things have, or these dietary fibers or bran contain high amount of substances which are not digested or absorbed, like cellulose, pectins, and lignins. So basically these dietary fibers or bran is made up of, or these have the composition like cellulose, pectins, and lignins. And these are the substances, these cellulose, pectins, and lignins are substances which are neither digested nor absorbed. ना ही ये डाइजेस्ट होते हैं, ना ही ये एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में. ठीक है, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे. सो बेसिकली व्हाट इट विल डू, इट विल इंक्रीज द बल्क कंटेंट ऑफ फीसेस. बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है और उसके बाद डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो ये बॉडी में जो बल्क कंटेंट है फीसेस का उसको बढ़ा देता है. ओके.
or along with increasing the bulk content of feces, it also absorbs water. ये वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल अप, और ये स्वेल्ड अप हो जाते हैं, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाएंगे, और इसी तरह से ये क्या करते हैं, these increases the bulk of the feces, and this is how they increase the bulk of the feces. Okay, first they will absorb the water, then they get swelled up, and finally they will increase the bulk of feces. Under bulk purges, the second subtype is methyl cellulose. Methyl cellulose. This methyl cellulose is also derived from cellulose, and it exactly works same as the bran or dietary fiber. ठीक है, जो dietary fiber और bran हमने अभी पढ़ा उसी के जैसा exactly ये similar way में work करता है, ठीक है। तो basically क्या होगा, these cellulose will neither get digested, digest भी नहीं होंगे और absorb भी नहीं होंगे body में, ठीक है। तो ये basically क्या होगा, अगर digest भी नहीं हो रहा है, absorb भी नहीं हो रहा है, तो ये intestines में swell up होने लग जाते हैं, ठीक है, swelled up होने लग जाते हैं, और अगर swell up हो गए तो क्या करेंगे ये, these increases the bulk of feces, जो feces का bulk है उसको increase कर देते हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर bulky feces है तो वो easily evacuate हो जाता है body से। ओके, next is in bulk purges only, next is इसबगोल। जो इसबगोल आप लोगों ने जरूर सुना होगा या देखा भी होगा। तो बेसिकली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड सीड हस्क। जो इसबगोल है वो किसका बनाता है, प्लांट सीड का। प्लांट सीड के जो हस्क होते हैं ना, जो मतलब सीड के ऊपर हल्का सा एक छोटा छोटा फ्लावर टाइप का लगा होता है ना, फ्लावर नहीं बोलेंगे उसको, ऐसे काइंड ऑफ फेदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हल्का सा होता है, फेदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो वैसा फॉर्म करता है, ठीक है ये। तो ये जो प्लांट में जो सीड है उसके ऊपर जो हस्क लगा हुआ है उससे ये डिराइव होता है इसबगोल। ये इट एक्ट्स इन सिमिलर वे एज ब्रैन, जैसे ब्रैन पर्जेस वर्क करते हैं वैसा ही सेम वर्क करता है, बट ये क्या है, ये हर्बल चीज है, ठीक है। 3 to 12 ग्राम ऑफ हस्क कैन बी गिवन डेली, और अगर आप डेली डोज लेना चाहते हो तो यू कैन टेक फ्रॉम 3 ग्राम टू 12 grams. A large amount of water must be given to the patient when using any of the bulk purgatives. अगर कभी भी ऐसे लेक्सेटिव या परगेटिव्स कभी भी खाना पड़ा या फिर कोई आपका पेशेंट ही ले रहा है तो उसको सजेस्ट करना है कि ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, जितना पी सकते हो उतना पानी पियो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है। बल्क परजेस जो था वो फर्स्ट कैटेगरी था, सेकेंड इज स्टूल सॉफ्टनर। ये बल्क परजेस के सब क्लासिफिकेशन में क्या क्या था, डाइटरी फाइबर और ब्रैन, मिथाइल सेलुलोज एंड इसबगोल। ओके, नाउ हियर कम्स द सेकेंड वन, स्टूल सॉफ्टनर। अब स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए क्या चीजें यूज होती हैं, ओके। दीज स्टूल सॉफ्टनर्स softens the stool and add the easy passage of fecal material by their lubricating action. तो बेसिकली ये स्टूल सॉफ्टनर क्या करते हैं कि ये स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, और as soon as the stool is convert softer, it gives a easy passage. ओके, तो ये एक इजी पैसेज हो जाता है इवैक्यूएशन के लिए, बॉडी से इवैक्यूएट होने के लिए। नेक्स्ट कम्स दी डॉक्यूसेट, DOCUSATE, डॉक्यूसेट। सो डॉक्यूसेट आप कितना दोगे,
100 to 200 mg daily orally in divided doses. ठीक है, 100 से 200 mg डेली देना है ओरली, और वो भी डिवाइडेड डोज में देना है. ओके, वंस इन ए डे नहीं है, 2 बार 3 बार दे सकते हो, बट 100 ml सॉरी mg के So what these stool softeners does? These substances soften the stool, and because as the stool is now softened, it can easily evacuate from the bowel. Okay, doses क्या है? ये जो डॉक्यूसेट है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल, जो फर्स्ट सब क्लासिफिकेशन आ रहा है स्टूल सॉफ्टनर का, वो है डॉक्यूसेट, DOCUSAT, डॉक्यूसेट. इसको आप कितना दोगे? 100 to 200 mg डेली ओरली इन डिवाइडेड डोज. ठीक है, 100 to 200 एक दिन में लेना है, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं. तो इसको आप क्या करोगे? डिवाइड कर लोगे. Second is it can also be used as a micro enema. और ये जो डॉक्यूसेट है, it can used as an enema also. ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है कि ये पूरा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको पूरा क्लियर आउट कर देता है. ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज माइक्रो एनिमा. नेक्स्ट कम अंडर स्टूल सॉफ्टनर्स, लिक्विड पैराफिन. लिक्विड पैराफिन. So liquid paraffin are given 10 to 30 ml daily orally. 10 से लेके 30 ml देते हैं हम, और डेली देंगे ओरली. ओके, और ये बेसिकली क्या करता है? इट इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स. इट मे कॉज लीकिंग फ्रॉम एनस, कॉजिंग सॉइलिंग ऑफ द क्लोथ. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 10 to 30 ml डेली देना है ओरली इस मेडिसिन को, लिक्विड पैराफिन को. ये फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन रोकता है. तो बेसिकली जब आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में. ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसलिए वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ कर देगा. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनस से लीकिंग होना शुरू हो जाता है. कंट्रोल नहीं रहता ना, बावल कंट्रोल नहीं रहता पेशेंट को, और लूज मोशन काइंड ऑफ सिचुएशन रहता है, तो कभी कभार लीकिंग हो जाता है. ओके, नेक्स्ट कम्स, हमने बल्क परगेटिव्स देख लिया, स्टूल सॉफ्टनर्स देख लिया. नेक्स्ट कम्स द कैटेगरी ऑफ ऑस्मोटिक पर्जेस. ऑस्मोटिक पर्जेस, these substances are not absorbed from the intestine and exert an osmotic effect in the colon. जो ये ऑस्मोटिक पर्जेस हैं, these are, ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. ठीक है, बट इसमें ना ये जो ऑस्मोटिक पर्जेस है, these show the इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोटिक इफेक्ट कॉज करता है कोलोन के अंदर. तो उससे क्या होता है कि वाटर कंटेंट बढ़ जाता है कोलोन में. ओके, विच लीड्स टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट इन द कोलोन. जैसे कि मैंने बता दिया कि वाटर कंटेंट कोलोन में बढ़ जाएगा उसकी वजह से. और अगर वाटर कंटेंट इज मोर इन द बाउल, देन डेफिनेटली देयर विल बी पेरिस्टालसिस मूवमेंट. पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हम दो तरह के ऑस्मोटिक पर्जेस के लिए सॉल्ट देखेंगे.
First is magnesium sulfate and second is magnesium hydroxide. So first magnesium sulfate, ये कितना देंगे 5 to 15 ग्राम orally, 5 to 15 ग्राम orally. Then magnesium hydroxide, it is given 25 to 50 ml orally. जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो 25 to 50 ml देना है orally. ओके और जो ये मैग्नीशियम सॉल्ट है, आइदर मैग्नीशियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, ये आप कैसे भी दे सकते हो, रेक्टम के थ्रू भी दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम द लैक्टुलोज. लैक्टुलोज, तो लैक्टुलोज का डोज क्या होता है 10 to 20 ml 2 times डेली ओरली. 10 से 20 ml ले सकते हैं और 2 टाइम ले सकते हैं. ओके स्लो. नेक्स्ट कम्स द लैक्टुलोज. लैक्टुलोज, इसका हम कितना डोज देंगे 10 to 20 ml ट्वाइस डेली ओरली. ओरली देना है, 2 टाइम देना है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सीवियर लिवर डिजीज. ये लिवर डिजीज में भी दिया जाता है लैक्टुलोज. क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये एमिनो प्रोडक्शन को रोक देता है. ठीक है. जो लिवर डिजीज है, स्पेशली हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, जिसमें हिपैटिक सेल का जो एनलार्जमेंट हो जाता है, दैट इज हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, उसमें दिया जाता है. उस कंडीशन में भी लैक्टुलोज देते हैं, क्योंकि लैक्टुलोज क्या करता है, एमोनिया जो प्रोडक्शन है, एमोनिया की प्रोडक्शन को रोक देता है. ठीक है. एंड इस वजह से क्या होता है, जैसे अगर अमोनिया प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस गट से एब्जॉर्ब भी नहीं होंगी. ठीक है. अमोनिया प्रोडक्शन, इट इनहिबिट्स अमोनिया प्रोडक्शन in gut, or it inhibits ammonia producing organism in the gut and also reduces the absorption of toxic substances from the gut. ठीक है. तो ये हो गया हमारा लैक्टुलोज. नेक्स्ट कम इरिटेंट पर्जेस. इरिटेंट पर्जेस. ओके. अब जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर देता है, बाउल में इरिटेशन कॉज करता है, इरिटेट कर देता है. ठीक है. दीज सब्सटेंसेस इरिटेट द बाउल वॉल. बाउल के वॉल को इरिटेट कर देंगे एंड स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस. इरिटेट करके क्या स्टिमुलेट कर देते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. ओके. द मेन ग्रुप ऑफ इरिटेंट पर्जेस इज एंथ्रेसिन ग्रुप. जो मेन ये इरिटेंट पर्जेस का जो मेन ग्रुप है वो है एंथ्रेसिन ग्रुप. ठीक है. और जो ये एंथ्रेसिन का क्या स्पेशलिटी है कि ये एंथ्रेसिन ग्रुप वाले जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी एंथ्रेसिन ग्रुप के अंदर जो भी आपको मेडिसिन मिलेगा इरिटेंट पर्जेस का, वो क्या रिलीज करता है, इमोडिन रिलीज करता है. ठीक है. और इमोडिन क्या करता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहां पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है. ठीक है.
इमोडिन क्या करता है कि पहले ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और उसके बाद वहां पे क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स हैं कैस्करा, ओके, सीना, कैस्टर ऑयल, बिसेकोडाइल, डेंथ्रोन, डेंथ्रोन। तो बेसिकली ये सारे जितने भी हैं वो नेचुरली डिराइव्ड ही है मेडिसिन इरिटेंट पर्जेस में। तो कैस्करा क्या होता है, कहाँ से मिलता है, बार्क ऑफ सागरदा ट्री। सागरदा ट्री का जो छिलका होता है ना, स्टेम का जो ऊपर से बार्क निकलता है, वहां से मिलता है ये। ठीक है, और कितना डोज दिया जाता है कैस्करा, 2 to 5 ml एट बेड टाइम, 2 से 5 ml बेड टाइम में दिया जाता है। ठीक है, सीना कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, सीना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ एंड पैड्स ऑफ द सीना प्लांट। जो सीना प्लांट होता है उसके ही रूट से, उसी के लीफ से, पैड से, इन सब चीजों से सीना बनता है। और ये कैसे दिया जाता है, 2 to 4 टैबलेट्स और 1 to 2 टीस्पून ऑफ ग्रेन्यूल्स एट द बेड टाइम। 2 से 4 टैबलेट लोगे या 1 से 2 चम्मच टीस्पून फुल रात में सोने से पहले लेना है। नाउ नेक्स्ट इज अंडर दिस सेम इरिटेंट परगेटिव्स, नेक्स्ट इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी क्या करता है, जैसे आप कैस्टर ऑयल को कंज्यूम करोगे विद इन 3 to 4 और 4 to 5, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आवर, you will feel the urge of going to the washroom. ठीक है, last one is bisacodyl. Bisacodyl is the most commonly used purgatives. It can also be given as suppository, okay, given 5 to 15 mg orally or 10 mg rectally. तो ये बिसाकोडाइल कैसे देते हैं, सबसे कॉमनली यूज होने वाला परगेटिव्स है बिसाकोडाइल, और ये कैसे देते हैं, सपोजिटरी की फॉर्म में देंगे, जैसे कि डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे रेक्टम के थ्रू बॉडी के अंदर, और 5 से 15 ml ओरली और 10 kg ऐसे दिया जाता है। ठीक है, 5 to 15 mg ओरली देंगे और 10 mg रेक्टली। लास्ट कम द डेंथ्रोन। डेंथ्रोन, अब डेंथ्रोन का क्या आता है, 25 to 150 mg डेली गिवन ओरली। डेंथ्रोन कैसे देंगे हम, 25 to 150 mg orally. Okay, now here comes enema and suppositories. Enema are the preparation which are used per rectally to initiate the evacuation of the bowel. बेसिकली एनिमा एक ऐसा मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन है या फिर सोल्यूशन का प्रिपरेशन है ऐसा जो कि किसके कौन से रूट्स के थ्रू देते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं, और जैसे ये इंसर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, ये क्या करने लग जाता है, इवैक्यूएशन ऑफ बाउल स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो दीज आर द वर्क ऑफ। अब सपोजिटरीज और एनिमा में सिर्फ ये फर्क है कि दोनों ही रेक्टली दिए जाते हैं, बट फर्क ये है कि जो सपोजिटरी होता है वो हार्ड होता है और एनिमा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है।
So this is all for today's class. Okay, आज के क्लास के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट क्लास में we will see anticholinergic drugs. Okay, anticholinergic drugs.